Hello, dear students. Welcome back to another session of this O-level English, in which we try to understand the comprehension passages and the opinion fact question and many other vocabulary-based question and all that thing. So, first of all, there is a paragraph for you in which you will try to understand opinion and fact. So, here is the paragraph that I'm going to read it for you. Uh, Nevertheless, we might be encouraged by what is being done to protect this universally loved animal. Conservation reserves have been opened to prevent their number declining. 2 decades ago, there were 13 of these reservoirs, and by 2006, the number has risen to 40. At the same time, laws have been passed to limit ownership of guns to prevent poaching and to remove people living on territory which has been reserved for these adorable creature. So here is a paragraph, and if you are asked to find out the opinion in it, so please focus on adjectives. And you see the very adjectives over there is a loved animal. And what sort of animal? Universally loved animal. This is a particularly opinion of the writer. He believes that animals are universally loved. And you'd think that it is a sole opinion of a person. It cannot be loved by anyone. Another one is here is it is written that laws have been passed living adorable, these adorable creatures. You see that these creatures may be adorable for the writer, but not for so many people. So this is our opinion, and here is answer: pandas are universally loved, or pandas are adorable. Okay, you can select any one, and if you are asked to write down two opinions, you can write these two, or if you're asked one, you can select any one of these. Okay, here is reading for meaning. My friend Flaps waded into the sea up to his calves. He was wearing waist-high rubber waders, so I did not worry about him getting wet. But the mud usually softened the further out you went, and I told him that. Thanks, Dad, he said, without looking back. I did not say anything when he went into above his knees. He rolled up his sleeves, reached down, and came up with a bright orange starfish. Nice, I praised. Let me take a look. I reached out, hoping to get him to come back. Here is the first paragraph. In this first paragraph, you need to understand the characters in it, the characterizations in it, and what you call it theme. So here is Flaps, my friend's Flap. He waded into the sea. तो अपने वो काफ्स तक बता रहा है, आपको पता है ये जो आपके पाँव का जो नीचे नी से जो नीचे वाला हिस्सा उसको काफ बोलते हैं, एंकल से और नी जो के दरमियान उसको काफ्स बोलते हैं. तो ही वाज वेयरिंग वेस्ट हाई रबर वेडर्स पहन रहा था. तो रेबर्स मैंने आपको ये वेडर्स आपको दिखाते हैं कि वेडर्स कैसे होते हैं. ठीक है, ये वेडर्स हैं, ये वाले. ठीक है, और इसमें जो वेडेड के मीनिंग होते हैं पैडल्ड, स्ट्रोड, वॉक्ड और स्प्लैश्ड और पुश्ड और योर वे, इनके मीनिंग होंगे. ठीक है, इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं. फ्रॉम पैराग्राफ 1 में क्वेश्चन है, व्हाट डिड माइल्स वॉर्न फ्लैप्स अबाउट व्हेन ही फर्स्ट वेंट इनटू द सी. तो किसने किया है? व्हाट डिड माइल्स वॉर्न किसको किया है? फ्लैप्स को. किसके बारे में? व्हेन ही फर्स्ट वेंट इनटू द सी, किसके बारे में उसने उसको वॉर्न किया. फिर हम देखते हैं इसको कि व्हाई डू यू थिंक फ्लैप्स सेड थैंक्स डैड टू माइल्स. तो ये जो फ्लैप्स ने मिल्स को ये क्यों कहा थैंक डैड्स के, अब्बा जी आपका शुक्रिया. इसका मतलब ये दोनों अब्बा जी बेटा तो है नहीं, ये तो दोनों दोस्त हैं. तो वैसे क्यों कहा? तो इसका आंसर देंगे और ये हम इस पे करेंगे. Why did you think the narrator did not say anything when Flaps went into the water above his knee? जब वो बिल्कुल नीज के ऊपर तक पानी चला गया तो उसने तो कुछ नहीं कहा. क्यों नहीं कहा उसने? क्योंकि उसको पीछे वो कह चुका था. तो अब इसके आंसर में आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं. पहला आंसर ये है कि द मड यूजुअली सॉफ्टेंड गॉट सॉफ्ट the further you went, or he told me, or not to go too far because of the soft mud. ठीक है, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे. ये ऑप्शंस लगे हुए हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन लगा हुआ है, ये वाला ऑप्शन लगा हुआ है, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज. इसके बाद उसने थैंक्स डैड क्यों कहा? इसलिए थैंक्स डैड कहा कि वो कहता था अब्बा जी जरा मेरी मुझे नसीहत ना करें. तो माइल वाज स्पीकिंग टू हिम एज इफ ही वर अ चाइल्ड. तो माइल्स वर प्रोटेस्ट पैट्रोनाइजिंग हिम, टॉकिंग डाउन टू हिम, ही वाज बीइंग सार्कास्टिक. ये बात कर रहा है. ठीक है, और इसका जो व्हाई डू यू थिंक, इसके बाद क्यों नहीं कहा? फ्लैप्स कह दें या ही कह दें. ही हैड इग्नोर्ड, मॉक्ड, had been sarcastic about his previous advice. He knew Flaps will not listen to him. ये इसका आंसर हो जाएगा.
ठीक है जी, हम जाते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ. I'll just get one more, he said. He bunched his sleeves higher and went on. Suddenly, it looked as if he had skipped a step on a staircase. Water rose past his thighs. He tried to turn and retreat, but the more he struggled, the lower he sank. His waist was almost underwater. I'm stuck, he said. तो I'll just get one more का मतलब ये कि मैं एक और जाके मछली को पकड़ूंगा या वो स्टारफिश को. He bunched his sleeves, उसने अपने स्लीव्स को ऊपर किया और चला गया. Suddenly it looked as if he skipped a stair. यूं लगा कि जैसे समंदर में कोई आदमी जा रहा है और वो स्टेप पे चल रहा है, उसका स्टेप मिस हो गया. तो जरी बार जब आप सीढ़ियां चढ़ते हुए एक स्टेप मिस कर दे तो एकदम आदमी नीचे गिरता है, शेयर फॉल होती है. ठीक है, तो वो शेयर फॉल को बात करें. ठीक हो गया जी. और इसके बाद ये हम चलते हैं इसकी तरफ. ही स्केर्ड, और इसका जो बंच का आंसर यहाँ लिखा हुआ है हडल्ड है, गैदर्ड है और क्लस्टर्ड के मानों में आता है. इसके क्वेश्चन आंसर में पैराग्राफ 2 के अंदर, इट टुक एज इफ ही हैड स्किप्ड अ स्टेप ऑन अ स्टेयरकेस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर. तो इसका आंसर है कि फ्लैप्स प्लंज्ड, एक बात, हैड सडन accidental unexpected drop, fall, sinking, sucking down, descent into the mud. ये सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं. पैराग्राफ नंबर 3 में अगर हम इसको पढ़ें यहाँ पे, I took off my boots and stepped into the water to my knees, then dived and dug around his feet. The mud felt as loose and light as flour. Then I pulled up his left leg, and that's when I felt the mud grab hold of my right foot and panic ripped through the length of me. I had seen temporarily stuck often enough to know that if I shift my weight onto my left foot to extricate my right foot, I might never breathe again. Then Flaps grabbed my hair and neck and, exerting all his force, pulled me free as if I were a kitten. This selfless act had made the situation worse. I was now free, but the water was up to Flaps' breastbone. तो इसमें जो ग्रैब का मतलब जो है ना, वो देखें कितने ज्यादा मीनिंग है. ग्रैब का मतलब क्लच है, ग्रिप है, ग्रेस्प है, सीज है, टेक है. ये सारे आपके जो फिंगर टिप्स पे इसके मीनिंग आना चाहिए. एक्सट्रिकेट का मतलब एक्सट्रैक्ट है, रिमूव है, डिसइंटेंगल है, डिटैच है, फ्री है, यानी उसको आजाद कर देने के मानों में इस्तेमाल होता है. और इसके पैराग्राफ 3 के अंदर जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो ये बनेंगे कि व्हाट इफेक्ट्स डज द राइटर क्रिएट बाय सेइंग दैट ही फेल्ट द मड ग्रैब होल्ड ऑफ हिज फुट, कि जो मट्टी ने उसके फुट को ग्रिप कर लिया है, क्लच कर लिया है. तो जब ग्रिप और क्लच कर लिएगा, तो ग्रिप और क्लच कर, इसका मतलब somebody is there, तो वो इसको कहता है कि शायद ये ह्यूमन बीइंग की बात करने लगा है. तो ही इज गिविंग द इंप्रेशन दैट somebody or someone or human being grips that. तो एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन योर वर्ड्स द प्रॉब्लम फेसिंग मिल. तो मिल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश थी, तो ये अपने अपने लफ्जों में इस्तेमाल करना है. हाँ जी, ये खरबूजे भी आ गए जी आपको लेने के लिए. What is the writer saying about Mills when he described him as a kitten? इसका आंसर देख लेते हैं. How did Mills knew the situation was worse? तो नंबर 1 का देखते हैं. What effects does the writer create? तो उसने क्रिएट किया कि that the mud is alive, ये चीज, और a creature या person या monster, someone is there. ठीक है ना, is a person. तो ये पर the mud is a person, the mud is a creature, the mud is someone that is going to hold his knee. ये लिखने की जरूरत नहीं, बस उसके ये इम्पैक्ट वेट किया उसने. एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स द प्रॉब्लम फेसिंग मिल्स. मिल्स की क्या क्या प्रॉब्लम थी? मिल्स की प्रॉब्लम ये थी कि एक तो वो शिफ्टेड और दूसरा एक्सट्रिकेट का था. इफ ही मूव्ड या इफ ही स्ट्रगल्ड, इफ ही रीपोजिशन हिमसेल्फ इन हिज फुट या री ट्रांसफर्ड हिज फुट या हिज वेट करता, तो ये पहला था कि उसको शिफ्ट नहीं करना था. दूसरा, अगर वो एक्सट्रिकेट करता, ट्राइड करता, अटेम्प्ट करता टू गेट आउट, बाहर निकलने की, रिमूव करने की, सेव करने की, तो गेट हिज फुट, तो ही मे बी इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. तो ही नीड टू, आप ये कहते हैं कि जब आप इस तरह के मड स्टोन के अंदर जो स्टक हो जाएं, तो दोनों पाँवों का, टांगों का बैलेंस रखना चाहिए आपको, ताकि आप जो है ना वो बैलेंस रख सके. अब ये एक चीज को दूसरे पे शिफ्ट करता तो उसने भजन, जारी बात है, उसका बैलेंस आउट हो जाना था. तो व्हाट इज द राइटर सेइंग अबाउट मिल्स व्हेन ही डिस्क्राइब्ड हिम एज अ किटन? तो उसने जब मिल्स के बारे में कहा कि ये बिल्ली के बच्चे की तरह से बाहर निकाले, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उसने, ही इज अ वीक, कि वो बच्चों की तरह था, हेल्पलेस था, लाइट था, पावरलेस था, नॉट स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था. ही इज वीकर एटसेट्रा देन फेल्प्स, तो उसकी जगह से वो ज्यादा वीकर था. इसका मतलब ये किटन है. हाउ डिड मिल्स नो द सिचुएशन वाज वर्स? को कैसे पता चला मिल्स को कि सिचुएशन वर्स हो गया? क्योंकि फ्लैप्स, हिज फ्रेंड जो था, वो हैड संक डीपर इनटू द वाटर, या द वाटर वाज अप टू फ्लैप्स ब्रेडस्टोन. फ्लिप वाज विल सिंक, विल, देखो ये स्टिल सिंकिंग, फ्लिप वाज स्टिल सिंकिंग, ये वर्स कंडीशन थी. चलो जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, और नेक्स्ट ये पैराग्राफ है. When
other people had got stuck. It was when they were crossing soft, exposed mud with the typical rescue involving laying down wooden planks that the person could crawl free on. However, Flaps was more than knee deep in mud. अच्छा जी, इसमें जो typical का meaning होगा वो होगा characteristics, distinctive, classic या conventional, usual के भी meaning में आता है। और rescue का मतलब आपको पता है रिलीज करना, सेव करना, लिबरेट या सॉल्वेज के मानों में इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है जी, डन हो गई बात। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के देखते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन इसके वाले से ये है, फ्रॉम पैराग्राफ 4, पिक आउट एंड राइट डाउन द सिंगल वर्ड विच टेल्स अस दैट अदर पीपल हैड गॉट स्टिक। अच्छा, वो हमने एक ऐसा वर्ड बताना है, ये देखें इसमें लिखा राइट डाउन सिंगल वर्ड, पिक आउट एंड राइट डाउन द सिंगल वर्ड, ये सिंगल का मतलब वन वर्ड होगा, विच टेल्स अस दैट अदर पीपल हैड गॉट स्टक, के दूसरे लोग भी फंस चुके हैं। ये वाला वर्ड कहाँ पे, दूसरे लोग भी ऐसा कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें रेस्क्यू का मतलब तो सेव करना होता है। ठीक है, उसके पीछे क्या वर्ड है, टिपिकल, सेम एज यूजुअल, इट हैज बीन हैपनिंग बिफोर, ऐसा हो चुका है, इसलिए मेरा टिपिकल इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ व्हाई वुड फेल्प्स रेस्क्यू द पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, उसकी जो इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, फेल्प्स की जो रेस्क्यू है वो पर्टिकुलर डिफिकल्ट क्यों थी, तो इसका जो आंसर वो ये है, एक तो वो टिपिकल हो गया कि रेस्क्यू टीम रेस्क्यूअर्स कांट यूज प्लॉन्क्स, और ही कुड नॉट क्रॉल के वाले से आ सकता था। ठीक है, ये फ्री आउट के बारे में। Lady, next day, when I told him my ideas, he pleaded with me not to leave him. The tide was coming in another hour and it would be over his head. He screamed for help, but nobody lives by the mud flats. I pulled on my boots and ran back along the beach. Earlier that night, I'd seen a piece of plastic piping washed up on the shore. It was still there. I grabbed it, then sprinted back and tossed it to the two Phelps. Practice fitting it to your mouth so that you can breathe through it. I said I'll be back in a flash, though I did not really know how long it would take me to find anyone to help. Then I ran, though I felt ashamed for leaving him. अच्छा जी, इसमें जो मड फ्लैट्स है ना, ये मड फ्लैट्स की पिक्चर देख लीजिएगा। ये आपको, ये जो इसको हम उर्दू ज़ुबान में गारा कहते हैं, मतलब ये गारे वाली जमीन, या इसको कीचड़ वाली जमीन भी कहते हैं, इसके अंदर फिसलन भी होती है, और अगर ये गदली जमीन हो, नीचे पानी हो, तो इसके अंदर दलदल भी बन सकती है। और ये भी देखें आप, दूसरी पिक्चर के अंदर भी आपको ये नजर आ रहा होगा, ये लोग इसके ऊपर, अब यहाँ पे अगर आदमी कोई फंस जाए या नीचे सिंक कर जाए, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट। फिर ये है कि ये चूंकि शोर है, इसको साहिल कहते हैं, और इसके पीछे भी समंदर है, यहाँ पे पानी है, और जो पीछे गया हुआ है, और जब जारी बात है पानी अब आगे आता है, तो ये अगर कोई आदमी या खुदा ना फंसा जो ऊपर पानी भी आ जाए, तो फिर क्या हालत होगी उसकी। तो ये सिचुएशन अंडरस्टैंड करें कि उसने किस अंदाज से ये अपनी राइटिंग में क्लीज किया हुआ है। तो व्हेन आई टोल्ड हिम माय आइडियाज, तो ही प्लीडेड, उसने मुझे रिक्वेस्ट की, क्या, नॉट टू लीव मी, मुझे मत छोड़ के जाओ। द टाइड वाज कमिंग इन का मतलब वो एक लहर आने वाली है, तो अनदर आवर हेड एंड इट वुड बी ओवर हिज हेड, तो ही स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, बट नोबडी लिव्स बाय मड फ्लैट्स। अब इन मड फ्लैट्स पे कोई बंदा तो रहता नहीं था, तो आई पुल्ड ऑन माय बूट्स एंड रैन बैक along the beach. तो earlier that night I had seen a piece of plastic piping washed up on the shore. तो ये grabbed के मानों में इसको सब देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं जी। ये जो मड फ्लैट्स का मतलब है स्ट्रेच ऑफ मडी लैंड को कहते हैं, और ये जो स्प्रिंटेड है इसका मतलब होता है तेजी से भागना, हरेट करना, रैन या डैश के मानों में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद ये जो ग्रैब का मतलब हमने कर चुके हैं, क्लच ग्रैब पहले भी आ चुका है। फ्लैश का मतलब शोई, गॉडी, लाउड और ब्लेज के मानों में आता है। आप जानते हैं फ्लैश का मतलब लाइट को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शोई, गॉडी और लाउड और ब्लेज, अगर ये पेपर में फ्लैश का मीनिंग आए, तो इसका ना आंसर शोई है, ना गॉडी है, ना लाउड है, बल्कि क्या होगा, ब्लेज होगा, क्विक होगा। क्योंकि वो क्या कहता है, इन आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, तो आई विल बी बैक इन अ शोई मैनर तो नहीं हो सकता ना, आई विल बी बैक इन अ गॉडी मैनर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इन अ ब्लेज, क्विकली, इन अ मिनट, लाइटनिंग, ठीक है ना, तेजी के साथ के मीनिंग में आ रहा है। ये है रेफरल कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में कहते हैं। दो आई डिड नॉट रियली नो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी टू फाइंड एनीवन टू, ठीक है जी। अब ये क्या, जब वो बिल्कुल जरा स्टक हो गया फेल्प्स, अब ये जो माइल्स की जिम्मेदारी है कि उसको निकाले, या वो भागा है किसी बंदे की मदद के बगैर, तो ये वहां से नहीं आ सकता था। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा, ये भी आपको बता, ये इन अ फ्लैश का मतलब यहाँ पे ब्लेज होगा, ना फ्यूरियसली होगा, ना एंग्रीली होगा, ना पैशनेटली होगा। ये मैंने इसको आप एग्जांपल दी आपको, पेपर में कैसे चीज आते हैं।
अच्छा जी, फ्रॉम पैराग्राफ 5, व्हाट वर द टू आइडियाज दैट मेल्स हैड टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ। तो क्या दो आइडियाज थे जिसके पास, ठीक है। और ये दो आइडियाज आपने लिखने हैं, दो क्वेश्चन है, तो मैं आप इसको पॉज करें और उसको खुद आंसर लिखें। देखो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जब उस वक्त तक आपका सही हो ही नहीं सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है कि वो कौन से दो आइडियाज थे, आप खुद देख लें कि वो कौन कौन से आइडियाज थे। तो अगर आप इसको देख लें यहाँ पे, अर्लियर दैट नाइट इट पीस ऑफ, ये देखें, ये पीस ऑफ प्लास्टिक पाइपिंग वॉश्ड अप ऑन द शोर, इट वाज स्टिल देयर, तो ही ग्रैब्ड इट देन स्प्रिंटेड बैक एंड टॉस्ड इट टू फ्लैप्स। फिर उसने ये किया, फिर क्या, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश दो आई डिड नॉट रियली नो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी टू फाइंड एनीवन हेल्प के लिए, देन आई रैन थ्रू वगैरह वगैरह। तो देखें इसका नंबर 1 पे, टू ग्रैब फाइंड गिव हिम अ पीस ऑफ प्लास्टिक, और गिविंग टू ब्रेथ थ्रू, और दूसरा टू फाइंड एनीवन समवन टू हेल्प, ठीक है। इजी है ना इसका आंसर जी, टू मेक हिम ब्रीथ फ्रॉम द पाइप और टू फाइंड, बिल्कुल अनोश आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिया आपने, एक्सेलेंट, शाबाश। चलो जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। The closet house was a mile away, and the man who answered the door looked so old I considered running on the next house. But after he calmed me enough to fill him in, he found a coil of rope and an inflated raft, and then we ran back towards the mud. Once we burst onto the beach, it was impossible to tell from the tranquil water or that reassuring daybreak in the east that anything terrific was happening. I could see no sign of Phelps, nothing. I was in full side aching pain. अच्छा जी, ये जो पैराग्राफ जिस बच्चे को समझ में लग रहा है ना, वो जिसको मीनिंग समझ लग रही है, उसको मैं अभी गारंटी देता हूँ A+ ग्रेड, ठीक है। बताएं जी, इसमें जब इसने कहा द क्लोजेस्ट हाउस वाज अ माइल अवे, इसका मतलब है कि 1 मील भाग कर गया है भाईजान, 1 माइल अवे ही वेंट। एंड द मैन हु आंसर्ड द डोर लुक्ड सो ओल्ड आई कंसिडर्ड रनिंग ऑन द नेक्स्ट हाउस, इसका क्या मतलब है। बट आफ्टर ही calmed me enough to fill him in, इसका क्या मतलब है fill him in का? So he found a coil of rope and an inflated raft, and then we ran back towards the mud. Once we burst onto the beach, it was impossible to tell me from the tranquil. ये देखें सर, it was impossible to tell from the tranquil water or the reassuring daybreak in the east that anything horrific was happening. I could see no sign of Phelps. Nothing. I was in full sight, aching, panic. ठीक हो गया जी, चलें जी, नेक्स्ट देखें बेटा, आपको इसको प्रॉपर करें इसको। चलें जी, देखें इसके मीनिंग्स को पहले हम फॉलो कर लेते हैं। फिल इन का मतलब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन है। ही calmed me enough to provide him information about it, what is going on it, ठीक है। fill him in एक्सप्रेशन मतलब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। और इसके में फ्रॉम पैराग्राफ 6 के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्यों नहीं मीनिंग्स क्यों नहीं आ रहे। बर्स्ट का मतलब, ट्रैंक्विल का मतलब, चलें इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिल अप तो द राइटर सेज इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल दैट एनीथिंग हॉरिफिक वाज हैपनिंग। ये मुश्किल क्यों था बताना भाई, उसका दोस्त डूब रहा है, लेकिन अगर आप साहिल समंदर पर देखते तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि कोई बंदा, इतना कोई दुर्घटना हो रही है, मतलब इसको एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स व्हाट मेड हिम फील दिस वे। और व्हाई डिड माइल्स पैनिक व्हेन ही रीच्ड द बीच, तो फिर जब माइल जब वो पहुंचा बीच पे तो किस चीज ने उसको पैनिक कर दिया। ठीक है, आसान है मखल आंसर इसके। तो देखिएगा, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब पीसफुल होता है, काम, क्वाइट, स्टिल, रिजर्व, नॉट वाइल्ड, टर्बुलेंट। और रीअश्योरिंग डे ब्रेक का मतलब होता है कि अब सुबह तो निकलने वाली है। इट वाज होपफुल, कंफर्टिंग दैट द सन वाज राइजिंग, इट वाज डॉन, सनराइज ऑन द डे लाइट इज नॉट थ्रेटनिंग, यू कैन सी मोर क्लियरली इन डे लाइट। अब ये उसको, ये तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे ना, ट्रैंक्विल एंड रीअश्योरिंग, तो आप इसे लिखोगे कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल, इट वाज रियली इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन from the surface of water that it was so peaceful that nobody can think or believe that something dangerous going to happen. And the second thing was reassures daybreak, it was dawn, it was the sun was about to come out, and you know it sees it, it means that everything is safe and sound. तो ये आप इसका आंसर लिखें। तो why did Miles panic when he reached beach, तो वो जब बीच पे पहुंचा तो पैनिक क्यों था, इसलिए कि उसको फ्लैप्स अब नजर नहीं आ रहे थे, वो समझा कि भाईजान फ्लैप्स चला गया। तो he couldn't see find any sign of Phelps,
तो फ्लैप्स हैड डिसअपीयर्ड, या ही थॉट फ्लैप्स हैड ड्रोन। ठीक है, ये इसका आंसर। तो वो सारी बात है, आदमी को परेशानी तो होती है कि मैं इसको छोड़ गया, 1 मील का फासला, आप जितना भी तेज भाग लें, मड फील्ड के ऊपर भागना हो आपने, तो आप तेजी से नहीं भाग सकते। तो कम से कम आपको, अगर आप 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड तय करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 10-15 मिनट तो ये कहीं नहीं गया आपका। अच्छा जी। तो ये इन्फ्लेटेड का मतलब भी देख लेते हैं। इसका मतलब एग्जैजरेटेड, ब्लोटेड, स्वोलन, फूला हुआ को क्या कहते हैं। और बर्स्ट का मतलब होता है कि ये स्पर्ट, गस्ट, टॉरेंट, रश, इरप्ट, तेजी से निकलने को कहते हैं। ठीक है, चलो जी। It took me a few moments to remember that Phelps and I had roamed forth roamed for It took me a few moments to remember that Phelps and I had roamed further south on the beach, and another sickening moment to spot the narrow plastic pipe sticking up well beyond the shrinking shore. On a second frantic look, there was also the top of the Phelps head breaking the surface. I gasped as if I had been underwater too, then somewhat illogically yelled that we were coming, which of course he could not hear. मतलब आप देखें कैसे उसने एक पिक्चर खींची है। अगर आपको ये पिक्चर समझ में लग रही है वर्ड्स के थ्रू, वहां पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब कि आपकी कंप्रेंशन, रीडिंग बेहतर, रीडिंग कॉम्प्रेंशन बेहतर है। ठीक है, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ डिस्कस करूं, अगेन आपसे मैं कह रहा हूँ कि जरा इसको पढ़िए, देखिए इसको किस अंदाज से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट टुक मी अ फ्यू मिनट्स टू रिमेंबर दैट फेल्प्स एंड आई हैड रोम्ड फर्दर साउथ ऑन द बीच, कि मुझे याद है कि मैं फेल्प्स इस तरफ से जो है ना उस समंदर में बीच में दाखिल हुए थे, कहते। एंड अनदर सिकनिंग मोमेंट, अब ये सिकनिंग का मतलब आपको आना चाहिए कि सिकनिंग का मतलब क्या होता है, डिस्गस्टिंग मोमेंट, टू स्पॉट द नैरो प्लास्टिक पाइप स्टिकिंग अप वेल बियॉन्ड द श्रिंकिंग शोर। अब ये श्रिंकिंग शोर क्या होता है? शोर साहिल समंदर कहते हैं, और जो शोर होता है उसके ऊपर पानी नहीं आ रहा होता। अब जब श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो शोर है आपका, मतलब जो साहिल है, वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि वहां से पानी एंटर हुआ है। तो ऑन अ सेकंड फ्रंटिंग लुक, अब ये फ्रंटिंग का मतलब होता है, मतलब वाइल्ड होता है, जब मतलब यू आर नो मोर इन योर सेंसेस। तो देयर वाज आल्सो द टॉप ऑफ फिलिप्स हेड, उसको फिलिप का हेड भी नजर आया। ब्रेकिंग द सरफेस का मतलब ये, ब्रेकिंग द सरफेस का मतलब ये नहीं कि वो फर्श को तोड़ रहा था, मतलब पानी उसके सर को पे टकरा रहा था। आई गैस, तो कहता है कि मैंने एक सांस लिया, मतलब पैंट करने को कहते हैं, मतलब यूं करके जो सांस लेते हैं, तो मुझे ऐसा सांस लिया एज इफ इन अंडर वाटर, के मैं भी शायद पानी ही के अंदर हूँ, मैं मुश्किल से सांस ले रहा हूँ। तो समवट इलॉजिकली जेल, तो मैंने ना अभी चीख मारी, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। ऑब्वियसली उसने आपकी आवाज उसने तो सुनी नहीं होगी की आवाज, लेकिन उसने अपने तौर पर ये बात कही। सिकने का मतलब जो है वो डिस्गस्टिंग, स्टमक टर्निंग, शॉकिंग, अपॉलिंग कहते हैं। और फ्रंटिंग का मतलब पैनिकी, हिस्टेरिकल, डेस्परेट, एजिटेटेड और वाइल्ड के मानों में आता है। और गैस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनहेल्ड, गल्प्ड, पेंटेड, पफ्ड, स्ट्रगल फॉर ब्रीदिंग, इसके मीनिंग में आता है। और क्वेश्चन है कि फ्रॉम पैराग्राफ 7 के अंदर, व्हाट टू थिंग्स डिड माइल्स सी जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। जल्दी से बताएं, तो बहुत आसान आंसर हो गया आपके लिए। मुझे जरा इसका मैसेज करें ताकि बताएं किस किस को ये समय में लगी है। और व्हाई डू यू थिंक द राइटर डिस्क्राइब द शोर एज श्रिंकिंग। तो उसने श्रिंकिंग शोर के बारे में क्या बात बताई, इसका क्या मतलब है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। कोशिश करें इसके आंसर देने की। जब आप ये प्रैक्टिस करें कॉम्प्रेंशन, तो कभी भी जो है ना आंसर ना देखें पहले। हाँ बिल्कुल अनोश, आपका मसला बहुत अच्छी है। प्रिंट ठीक कहा आपने। सारंग फ्लैप्स हेड, और वो पाइप का भी जिक्र करना था, दो चीजों का जिक्र करना था। अब देखें, सारंग ने आंसर दे दिया है, अनोश ने आंसर दे दिया, बाकी किसी बच्चे ने अभी तक एफर्ट नहीं की है। इट्स वेरी मच अलार्मिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ओके जी। तो व्हाट टू थिंग्स, तो आप इसको अंदाजा कर लें कि वो कौन कौन सी दो चीजें थी। देयर इज अनदर, यस, पाइप एंड ये गीगा निगा कौन है भाई? गीगा निगा अफ्रीकन स्टूडेंट है मेरा। वेरी गुड। चार्ड से आया है, गायना से, जिबूती से, किधर से आया ये बच्चा? अच्छा जी। इसका आंसर हमारे पास ये है कि द नैरो प्लास्टिक पाइप, और दूसरा द टॉप ऑफ फेल्प्स हेड। ठीक है, बस ये सिंपल आंसर करना है। व्हाट डू यू थिंक द राइटर डिस्क्राइब द, ये शोर एज श्रिंकिंग का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया आपको कि साहिल समंदर सिकुड़ रहा था। क्यों सिकुड़ रहा था? कि द टाइड वाज कमिंग इन, और हैड रिजन, वाज राइजिंग, जो भी हो सकता है। अब मतलब सपोज करें कि मैंने आपको पिछले पिक्चर अगर आपको दिखाऊं, तो अगर आपका सपोज इतना शोर है, ये अगर आपका शोर हो, तो यहाँ से वेव्स आ रही हो, ये जो वेव्स आ रही हो, तो ये वेव्स जब ऊपर जा रही हो, तो ये समंदर क्या हो गया है? छोटा हो गया हुआ है। इसके से मीनिंग, वेल आई एम वेरी मच पुअर इन ड्राइंग्स।
बट आई होप सो आई मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट वाज दैट। अच्छा, इसके अंदर देखिए मैंने लिखा है द टाइड। अब ये द आपको क्या नजर आ रहा है? स्मॉल। कभी भी आंसर देते हुए आपने ये स्मॉल में ना लिख देना प्लीज, ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा बैड इमेज जाता है। आपने द टाइड कैपिटल लिखना है, दी टाइड, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे लास्ट पैराग्राफ है, व्हेन वी गॉट क्लोज एनफ। कोई ऐसा बच्चा पढ़ेगा जी? कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी, हरी अप। एनीबॉडी विल रीड इट? ahad, will you read it? Aziz, will you read it? Unmute yourself. Anybody who wants to read this paragraph. This is the last one. Hurry up. Nobody opened it. No one is willing. Hurry up, hurry up, hurry up. Who will read this? Gianosh, you are the only one. Only speaker in the class. Okay, okay, just a second. Start. When we got close enough, I climbed on the old man's raft with the end of the rope tied in a loop. When I got to Phillips, I could see his mouth slightly below the surface, his fist clenched around the pipe, and his eyes buggling insanely. I dropped the rope over Philip's shoulder. He grabbed it with his free hand, make sure it's around his chest. The old man yelled, then turned and strode up the bench with the rope knotted around his hips. At first, Phillips didn't move, and then there was a pop, and gradually I saw the plastic pipe moving. Next, Phillips himself emerged, coughing in the shallows. His lips were bruised purple. He'll be fine, the old man said. Okay, जबरदस्त। When we got close enough, मतलब उसके नजदीक पहुंचे, I climbed on the old man's raft। अब ये राफ्ट आपको पता है टाइप ऑफ, आप ये कह लें कि वो कैनो होती है, बोट होती है, इस तरह करके, क्योंकि राफ्ट मतलब वुडन प्लांक भी होता है। विद द एंड ऑफ ए रोप टाइड ऑन अ लूप, व्हेन आई गॉट टू फेल्प्स आई कुड सी हिज माउथ स्लाइटली बिलो हिज सरफेस, हिज फिस्ट। फिस्ट कहते हैं ये जो अपने जो मुक्का होता है, क्लेंच्ड, भींचा हुआ था, उसने बंद किया हुआ था, राउंड द पाइप, एंड हिज आईज बल्जिंग इनसेनली। इनसेनली का मतलब वाइल्डली होता है, ठीक है ना? सेंसलेसली होता है, लेकिन यहाँ पर बल्जिंग इनसेंसेस नहीं होगा, मस्ट बी अ डिफरेंट मीनिंग। I dropped the rope over Phelps' shoulder. He grabbed it with his feet hand, make sure it's around his chest. The old man yelled, then turned and strode up the beach with the rope knotted around his hips. At first, Phelps did not move. Then there was a pop, एक वो आवाज आती है, and gradually I saw the plastic pipe moving. Next, Phelps himself, ये जो प्लास्टिक पाइप मूविंग का मतलब ये कि उसके, वो उसने हाथ से पकड़ा हुआ था ना, तो मूव के का मतलब उसके हाथ आगे पीछे मूव करना शुरू हो गया। नेक्स्ट फेल्प्स हिमसेल्फ इमर्ज, तो फिर ये फेल्प्स अभी सामने नजर आना शुरू हुए, कफिंग इन द शैलो, और फिर वो खांस रहा था। हिज लिप्स वर ब्रूज्ड पर्पल, उसके जो ना होंठ नीले पड़ गए थे। और ही विल बी फाइन, द ओल्ड मैन सच ने कहा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये बहादुरी की दास्तान बच्चे को बचाने की, तो उसको मजा आएगा ना अगर पानी, गहरे पानी में जाने का। तो क्लेंच का मतलब कंप्रेस्ड है, टाइटेंड है, क्लैस्ड या क्लैम्प्ड या ग्रिटेड के मानों में आता है। और इनसेनली का मतलब होता है फुलिशली, स्टूपिडली, सेंसली। अब तीनों मीनिंग्स इनसेनली के मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बल्जिंग का मतलब फुलिशली नहीं कर रहा, बल्कि आइस बल्जिंग का मतलब वाइल्डली हो उसके मानों में आ सकता है, ठीक है ना? कि मतलब बहुत ज्यादा अनयूजुअल के मानों में आ सकता है। From paragraph 8 में, Miles and the old man rescued Phelps. What did Miles do to rescue Phelps? और what did the old man do to rescue Phelps? बड़ा सिंपल आंसर है, तो बड़ी आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि माइल्स ने क्या किया? ड्रॉप द लूप ऑफ द रोप ओवर या राउंड फेल्प्स हिज शोल्डर या हिज चेस्ट। और ओल्ड मैन ने क्या किया था कि उसने, ओल्ड मैन ने क्या किया था? ही टर्न्ड एंड स्ट्रोड अप द बीच विद द रोप अराउंड हिज हिप्स, पुल्ड ऑन द रोप बाय वॉकिंग। तो स्ट्राइडिंग अप, उसको उसने बांध के उसको अपने तरफ से खींच लिया था उसको, ठीक है? टग ऑफ वॉर की तरह जैसे खींचते हैं। चलें जी, दैट्स ऑल। और इसमें हमने ये कुछ वर्ड्स आप देख लीजिएगा, ये टेम्पोरेली वर्ड है, ये उसके मीनिंग्स हैं सारे, ठीक है? ये आपके पास नंबर 2 में फिल हिम इन का मतलब है टेल हिम एवरीथिंग, एक्सप्लेन, इन्फॉर्म, गिव इन्फॉर्मेशन, ये इसका मीनिंग है। इनफ्लेटेड का मतलब ब्लोन अप है। बर्स्ट का मतलब रश्ड है। और सिकनिंग का मतलब हॉरिफाइंग, नॉस्टिंग, हॉरेंडस, शॉकिंग, ये इसके मीनिंग है सारे। और स्लाइटली का मतलब होता है यानी लिटिल, अ बिट, टच। और क्लेंच का मतलब फिक्स्ड हो, होल्डिंग टाइटली के मानों में आता है। और इनसेनली का देखिए मैडली, क्रेजीली, फ्रेंटिकली, डिरेंज्ड, लाइक अ लुनेटिक, मैनिकली, डेमेंटेड और फ्रेंजीड, वाइल्डली, ये सारे देखिए इसके आंसर आ रहे हैं। अब देखें
ये जो अगर उसने ये वाले मीनिंग जो है जहाँ इंसेनली के अगर फुलिशली और स्टूपिडली और सेंसली में लिखा हो तो फिर आपको पता होगा यार मैंने कौन सा कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है जी। चला जी, अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। कहीं से आपको कोई एम्बिग्विटी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं।